Hello everyone, welcome back to the Global Channel, and today we'll start with a very fresh topic, that is oceanic currents. In previous lecture we have covered the topics like oceanic temperature and oceanic salinity, and we have covered various topics under that. So today we'll start with a very new topic which is under oceanography only, that is oceanic currents. Very interesting topic. Okay, so what actually this current term means? Does it mean the electricity current? Not at all. It means the movement of, or the general movement, or the gradual movement of surface water in a same direction और in a single एक ही डायरेक्शन में and over a long distance. Now what does this statement mean? It means कि जो surface movement है, जो surface water का movement है, एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में एंड फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस, एक ही डायरेक्शन में और लंबे डिस्टेंस तक जो हमारे पास सरफेस वाटर मूव कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज ओशनिक currents. Now, oceanic currents, we have two types of oceanic currents. So we have one, we have cold oceanic currents, and another we have cold oceanic currents, and another we have warm oceanic currents. Okay, some examples we can take. For example, north equatorial current, north Atlantic equatorial current, or we can also take Philippines current. In cold oceanic currents, we can take Labrador current. Labrador current, Bering current. So these are some of the examples, and now let's start with the factors which affects the oceanic currents. You can take the screenshot of this if you want. Okay. So next we'll cover some of the factors. For example, wind, which is the triggering effect, जो इसके मूवमेंट को इनिशिएट करेगी. Okay, so let's take some of the colorful markers. Okay, so we have factors. So the very first factor we can see is wind. अब wind blow करेगी, it will drag the oceanic surface water. जब wind blow करेगी, यहाँ से चलेगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास surface water है, इसको भी साथ लेके चलेगी, ये water भी move करेगा. It will move, तो in the same direction it will move जहाँ पे हमारे पास wind move करती है. अगर तो ये wind हमारे पास warm wind है तो बहुत प्रेशरफुली मूव करती है, कोल्ड विंड भी करती है, बट एज कंपेयर टू वार्म विंड ये बहुत ज्यादा वार्म विंड मूव करती है. अब ये ब्लो कर रही है तो यहाँ पे सरफेस पे जो वाटर है ये भी मूव करेगी. ऑलराइट, ओके. सेकंड आता है कॉरियोलिस फोर्स.
Coriolis force. We have covered this concept of Coriolis force in climatology. What we have learned about this is the earth, this is equator, ये northern hemisphere है and this is southern hemisphere. अब हमेशा ये जो हमारे पास Coriolis force होती है ये northern hemisphere में right side डिफ्लेक्शन करती है एंड southern साइड में हमेशा लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होती है. ऑलराइट, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे हमने ये विंड का देखा था, अब हम इसको इसी में ही ओशियन वाटर का देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे पास वाटर मूव करेगा, जो उसकी डिफ्लेक्शन होगी वो राइट साइड होगी, टुवर्ड्स राइट साइड, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस इन, वेट अ मिनट, डिफरेंस इन टेम्परेचर, salinity and density. ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ वाटर विच इज ओशनिक करंट्स. नेक्स्ट वी हैव कोस्ट लाइन मॉडिफिकेशन. कोस्ट लाइन मॉडिफिकेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे पास कैसी कोस्ट लाइन है, हमारे पास टोपोग्राफी कैसी है, वाटर ऐसे आ रहा है, हमारे पास कोस्ट लाइन ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक करके ऐसे पीछे की तरफ रिवर्स. ऑलराइट, तो ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, हमारे पास जो टोपोग्राफी है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ओशनिक करंट्स. Okay, so these are some of the factors which we have covered, and now we'll cover the significance of the oceanic currents. You can take the screenshot of these factors. Okay. Next is the significance of oceanic currents. फर्स्ट वी विल कवर कि हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में कैसा रहता है, देन वी विल सी कि हमारे पास सब ट्रॉपिकल में कैसा रहता है, एंड देन एट द एंड टेम्परेट रीजन्स में कैसा रहता है. सो विल कवर द सिग्निफिकेंस. ओके, सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज कि हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा. लेट मी राइट इट विद रेड. ट्रॉपिकल रीजन्स, अब जब भी वाटर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगा, व्हेन इट विल फ्लो फ्रॉम ईस्टर्न साइड टू वेस्टर्न साइड, तो यहाँ का जो वाटर है वो तो वेस्टर्न साइड आ गया. यहाँ पे जो हमारे पास वार्म वाटर का जो एरिया था वो यहाँ पे खाली रह गया. तो अब यहाँ पे जब खाली रह जाएगा, सो व्हाट विल हैपन कि नीचे से कोल्ड वाटर विल कम अपवर्ड्स. ये वाले रीजन में यहाँ पे वाटर, कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज अपवेलिंग. अपवेलिंग कि जब वाटर कम्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम साइड, राइट, दिस इज टर्म्ड एज अपवेलिंग. तो यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले रीजन का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. ऑलराइट, यहाँ का टेम्परेचर हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा. नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक्यूमुलेशन हुआ है ऑफ वार्म वाटर, कहाँ पे, वेस्टर्न साइड में.
तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे वेस्टर्न साइड में हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, वाटर जो इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर इंक्रीज्ड मिलेगा, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि ईस्टर्न साइड में ये टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि यही वाला पानी जब वेस्टर्न साइड में आया तो वेस्टर्न साइड पे इसने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ओके, अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सब ट्रॉपिकल रीजन में एक मिनट, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन में अब क्या होगा कि जो हमारे पास कोल्ड ओशनिक करंट है, जब वो वेस्टर्न मार्जिन पे होगा, वेस्टर्न मार्जिन वी कैन से ऑफ ओशियन का भी हम देख लेते हैं। तो जब हमारे पास कोल्ड करंट वेस्टर्न मार्जिन पे आएगा, अभी हमने पढ़ा था कि जब वार्म कंडीशंस होती है तो वहां पे इवेपोरेशन होता है, लीड्स टू प्रेसिपिटेशन, मींस पहले क्लाउड फॉर इवेपोरेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड करंट है, कोल्ड कंडीशंस है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कम इन मिनिमल, इट विल सरपास द प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल नहीं होगा। तो जब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, wait a minute, for example Atacama desert, it's in South America। क्यों बनता है, ड्यू टू पेरू करंट, पेरू चिली करंट, या फिर its another name is Humboldt current, Humboldt current। और एक और another example is Namib desert, सर्दर्न अफ्रीका में ये हमारे पास हमें दिखता है। This is due to Beniguela current, Beniguela current, and these both of these Peru current or we can say Humboldt current and Beniguela current are cold current। I have told you कि यहाँ पे जब वेस्टर्न मार्जिन पे ये वाटर आके स्ट्राइक करता है, कोल्ड कंडीशंस होती है, प्रेसिपिटेशन नहीं होती, सो वी कैन से कि हमें यहाँ पे डेजर्ट की फॉर्मेशन दिखती है। सो इन दिस रीजन वी हैव कवर्ड सब ट्रॉपिकल रीजन में कि जब वेस्टर्न साइड में आके कोल्ड करंट हिट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में वी हैव सीन कि वेस्टर्न साइड पे आके वो फॉर्म क्या कहते हैं, वार्म करंट आता है एंड टेम्परेचर को राइज करता है। यहाँ पे वार्म करंट की जगह कोल्ड करंट आ जाता है एंड कोल्ड करंट टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होने देता एंड लीड्स टू डेजर्ट्स। सो द नेक्स्ट इज टेम्परेट रीजन्स। ओके, टेम्परेट रीजन में क्या होता है, टेम्परेट रीजन में जब हमारे पास वार्म वाटर वेस्टर्न साइड पे आता है, मिनट, थर्ड टेम्परेट रीजन्स। ओके, अब यहाँ पे जब हमारे पास वार्म वाटर आता है,
और वी कैन से वार्म करंट आया और स्ट्राइक करता है किसी एक लैंडमास को. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक नॉर्वे. यहाँ नॉर्वे है, दिस इज स्वीडन एंड दिस इज समवेयर फिनलैंड. ऑलराइट, तो क्या होगा कि ये नॉर्वे है, ये फ्रिजिड रीजन के पास है, पोलर रीजन के पास है, टेम्परेट में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बहुत ज्यादा स्नो होगी. बट ड्यू टू वार्म वाटर, यहाँ पे जो वार्म वाटर आता है, इट्स नेम इज नॉर्वेजियन करंट. तो ये जो नॉर्वेजियन करंट है, ये वार्म करंट है, ये आके जब इसकी कोस्ट लाइन पे से स्ट्राइक करता है, तो यहाँ की जो विंटर्स हैं, जो बहुत सिवियर विंटर्स है, उसको ये माइल्ड विंटर्स कर देता है. और जब माइल्ड विंटर्स होगी, तो यहाँ पे जो इसकी कोस्ट है, जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा आइस वाली होगी, तो इस कोस्ट को ये आइस फ्री कर देते हैं. मेक्स द कोस्ट आइस फ्री. इसकी जो कोस्ट है उसको ये आइस फ्री मींस यहाँ पे ये बर्फ को जमने या फॉर्मेशन ऑफ आइस को रिड्यूस कर देता है. ऑलराइट, सो ये होता है टेम्परेट रीजन में कि व्हेन in temperate region, when the warm current comes and strike to a temperate region, it reduces the it reduces the severity of the winters and increases the temperature, therefore decreases the formation of ice or make it ice free. All right, this is the third significance. Okay. So the fourth significance is कि जहां पे warm current and ocean current मिलते हैं, where the warm and ocean current, warm current plus, I am using colorful markers for you, plus cold current, ये जब मिलते हैं तो बनाते हैं फिशिंग जोन, द बेस्ट फिशिंग जोन. यहाँ पे बहुत ज्यादा फिशेस आ जाते हैं. इट मेक्स बेस्ट फिशिंग जोन ऑफ द वर्ल्ड. ग्रैंड बैंक्स है न्यू फाउंडलैंड में इन कनाडा फॉर एग्जांपल, जो बेस्ट फिशिंग जोन बनाते हैं, जहाँ पे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट आके मिलते हैं. अनदर इज कि जब हमारे पास वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलते भी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फॉग की फॉर्मेशन होती है. तो जब इसकी फॉर्मेशन होगी तो ये नेविगेशन को थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं. नेविगेशन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. अभी क्या है कि ये जब ओशियन करंट्स, वार्म ओशियन करंट है या कोल्ड ओशियन करंट है, जब ये मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वार्म ओशियन करंट मूव हुए, तो ये हीट की भी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हीट ज्यादा है, यहाँ से मूव होके उस रीजन में गया जहाँ पे हीट कम थी, और वहां पे अकॉर्डिंगली टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट जो भी है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द करंट. नेक्स्ट वी हैव कि समवेयर वी हैव सीन कि जो ओशनिक करंट है, जब ये मूव करते हैं तो ये हमारी नेविगेशन में हमें हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है और एक शिप है या एक बोट है वो चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो वो उसको एक फोर्स देगी और इजीली उसको वो मूव करेगी. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स which we have covered, the significances which we have covered. Now the another topic which we will cover in our next lecture, that is warm and cold oceanic currents in the three biggest oceans which we have: Indian Ocean, Atlantic Ocean and Pacific Ocean. So till the time, please stay tuned and keep revising, and I hope you have enjoyed this lecture. So please subscribe to the Global channel, and yes, please remain tuned for the next lecture. Thank you very much and have a very wonderful day ahead. Thank you.